hope you are in the pink of your health. As usual, I have come up with a new topic to you, that is infinitive. If you are the first time viewer, then I would like you to subscribe this channel, English with Nair. You can see below. Just click on the subscribe button, and on the right hand side, click on the bell icon to get alerts of my new videos would be uploaded in this channel regularly. Now, if you are lagging behind and you want the content beforehand to go through it, then if you are a subscriber, register free on the website www.ssnair.org. Log in and access the content of the website, the grammar materials. Even if you are basic, intermediate, or an advanced learner of English, it will help you a lot. So dear friends, subscribe to this channel, and if you are already a subscriber, one of my regular viewers, then I would request you to click on the like button at the end of this video if you really like this video. So thank you all of your friends for watching this channel regularly, and I'll be coming up with new grammar topics material. Just write in the comment box whatever you want and you will get it. If more of my viewers, subscribers do demand a particular topic, I will take it on priority. So friends, feel free to chat with me in the live chat sessions, live streaming that are also being conducted in this channel regularly for grammar topics, for some motivational speeches, and some trendy topics. I would like you to visit my channel regularly. Now, come back to understand it. Verbs which do not change, that is not limited to person and subject. Infinitive, from the word itself we can understand it is infinite. तो यहाँ क्या है कि आपको सीमित नहीं होता है, वर्ब जो है वो चेंज नहीं होता है as per person and subject. You know what is person? First person, second person and third person. प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, और एकवचन बहुवचन, that is singular and plural. So person, it is not limited to the subject, that is not limited to person number. Right? So either it may be singular or plural, or it may be first person, second person, third person. For everything it will be the same, there will be no change. तो यहाँ जो है आपको कोई भी पुरुष हो, that is कोई भी person हो, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या तृतीय पुरुष, और कोई भी वचन हो, एक वचन या बहुवचन, that is singular or plural, verbs जो है वो चेंज नहीं होता है, that is infinite, it is not limited, it is non-finite. तो इस प्रकार का non-finite verb है, उसको infinite verb बोले या infinitive. जैसे एग्जांपल देते हैं, I go, we go, लेकिन he goes. अब यहाँ he goes कैसे हो गया? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ गो के पीछे यस लगता है, तो यस लगता है. ही स्माइल्स बट दे स्माइल. तो यहाँ वर्ब्स जो है चेंज हो रहा है. ये गो इज लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है. जैसे आई गो लेकिन ही गोस हो गया, इज फाइनाइट वर्ब, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग हियर, that is go changes as per the person and number. पर्सन और नंबर के मुताबिक, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में गोस हुआ, लेकिन दे बोलूंगा तो गो ही आएगा. राइट, दे गो, ही गोस, दैट इज गो चेंजेस एज पर द पर्सन नंबर, सो इट्स कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. तो यहाँ जो गो जो है वो चेंज होता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर में गोस हुआ, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल में वापस गो हो जाता है. तो इस प्रकार चेंज जो होता है
उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं. इट्स फाइनाइट, इट इज लिमिटेड. किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर. सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर, उसको देखते हुए आपको चेंज करना है. लेकिन नॉन फाइनाइट में क्या होता है कि देयर इज नो चेंज. जैसे कि यहाँ टू गो, राइट, तो टू गो ही रहेगा. आई के साथ हो, ही के साथ हो, कि वी के साथ हो, कि ही का साथ हो ना. वट एवर दैट इज पर्सन, वट एवर द नंबर, सिंगुलर प्लूरल, टू गो will not change. But to go is non-finite, not limited to the subject. That is, it does not change as per person and number. Person और number के मुताबिक change नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? Non-finite. It's non-finite or infinite, hence called as infinitive. तो उसको non-finite बोलो या short में infinite. Infinite is called infinitive. So what is infinitive? That is non-finite box. It's not limited to the subject. It's not dependent on the person and number. पर्सन नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, लेकिन वो नॉन फाइनाइट है, दैट इज इनफाइनाइट. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आई वांट टू गो, वी वांट टू गो, और ही वांट्स टू गो. ठीक है, तो वहां देखो वांट्स, वांट वांट्स हो गया, ठीक है, चेंज हो रहा है, बिकॉज़ से फाइनाइट वर्ब. लेकिन टू गो जो है वो नॉन फाइनाइट या इन्फिनिटिव है. सो इन्फिनिटिव चेंज नहीं होता है. दिस थिंग टू अंडरस्टैंड. That is, it does not change as per person and number. Infinitive works as noun and also as a verb simultaneously. Infinitive जो है कैसे काम करता है? नाउन की तरह और वर्ब की तरह simultaneously. Infinitive works as noun and also as a verb simultaneously. It serves as a subject like a noun. तो यहाँ देखोगे कि ये जो infinitive word है वो noun भी प्ले करता है और वर्ब भी प्ले करता है. एग्जांपल देंगे तो ज्यादा समझ आएगा. It serves a subject like a noun. जैसे एग्जांपल ले लो, to err is human. To err is human. Now, it does not change as the person number. Sorry. To err is human. It serves as an object like a noun. I love to sing. तो सब्जेक्ट ग्रुप में क्या है? जैसे टू एर इज ह्यूमन, टू एर जो है सब्जेक्ट हो गया. उसी प्रकार ऑब्जेक्ट के रूप में उसको यूज कर सकते हैं. तो ये नाउन की तरह एक रोल प्ले कर रहा है. इट सर्व्स एज ऑब्जेक्ट. जैसे आई लव व्हाट? टू सिंग. तो टू सिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. सो टू एर एंड टू सिंग both are infinitive, and in the first sentence is playing the role of subject. In the second sentence is playing the role of object. Right? So to err is human, इसमें सब्जेक्ट है. आई लव टू सिंग इसमें ऑब्जेक्ट है. तो ये देखोगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ज्यादातर नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन. तो यहाँ ये वर्ब है टू टू एयर, लेकिन नाउन की रूप लेती है. तो it seems like a noun because doing the role of a noun is playing the role of a subject as well as an object. Secondly, verb कैसे है? उसको हम कैसे substantiate करेंगे? It takes an object after it like a verb. Verb क्या होता है? Verb के बाद object आता है. तो यहाँ भी वापस एक ऑब्जेक्ट आएगा. जैसे एग्जांपल लिख लो, the officer wanted to issue order. The officer wanted to issue order. ऑफिसर को ऑफिस चाहता था इश्यू करे ऑर्डर. नाउ ऑफिसर वांटेड व्हाट? टू इश्यू. तो देखोगे ये खुद ऑब्जेक्ट है ना, टू इश्यू, वांटेड टू इश्यू. इट्स प्लेइंग द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट. बट सेकेंडली तो इट नाउन जैसे रोल हुआ. वर्ब की तरफ भी कर रहे हैं. क्यों? द इस ऑफिसर वांटेड टू इश्यू. मैं पूछूंगा व्हाट टू इश्यू, तो आंसर आएगा ऑर्डर. तो ये ऑर्डर जो है वो ऑब्जेक्ट वंस अगेन है, बट इज ऑब्जेक्ट टू द इंफिनिटिव टू इश्यू. So to issue infinitive is playing the role of verb here, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है. तो ये वर्ब की रूप कैसे धारण कर रही है? क्योंकि उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, स्पेशली टू इश्यू व्हाट. टू इश्यू करके स्टॉप नहीं हो सकता. टू इश्यू ऑर्डर, राइट. इट्स प्लेइंग द रोल ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब, टू इश्यू ऑर्डर. सो here to issue is playing the role of a verb, is playing the role of a noun. How can you understand? The officer wanted what? To issue. So it's playing the role of an object. Hence it is called a noun.
तो यहाँ देखो कि टू इश्यू नाउन का भी रोल प्ले कर रही है और वर्ब का भी, राइट। तो इस प्रकार का रोल है इसका नॉन फाइनाइट, दैट इज इंफिनिटिव। Infinitive can also be termed as verb noun, इसलिए इसको verb noun कहते हैं, because playing simultaneously the role of both verb and noun. Positions of infinitive. Infinitive कहाँ कहाँ आता है? Location. Subject plus verb plus infinite. कैसे कैसे उसको कहाँ पे पोजीशन दिया सकते हैं हम लोग? Subject plus verb plus infinitive. जैसे we is subject, it is verb, and to live is infinitive. Simple pattern. Subject plus verb plus infinitive. We eat to live. सेकेंड इसका सिंटेक्स ऐसे हो सकता है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है और उसके बाद इंफिनिटिव। शी डिड नॉट वांट मी टू कम विथ हर, शी डिड नॉट वांट मी, मी इज वंस अगेन ऑब्जेक्ट, टू कम, so she did not want is verb, she did not want is verb, she is subject, did not want is verb, me is object and to come is infinitive। तो देखो ऑब्जेक्ट मी के बाद टू कम आया, तो ऐसे भी पैटर्न हो सकता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद टू इंफिनिटिव लग सकता है। सिमिलरली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव हो सकता है, जैसे दिस इज द टाइम टू वर्क, दिस इज द टाइम टू वर्क, ये टाइम इज नाउन, राइट, इज जो है वर्ब है, सो दिस इज द टाइम टू वर्क, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव, तो आफ्टर नाउन टाइम के बाद आ सकता है। सो दिस कुड बी द पैटर्न ऑफ इंफिनिटिव। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा फिर इंफिनिटिव आ सकता है, राइट। जैसे she did not want me to come with her, she did not want me means object, to come, this is the time to work, time जो noun हो गया। as complement, what is complement? SVO पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ज्यादातर इसके बाद जो आता है ना वो कॉम्प्लीमेंट होता है। शॉर्टकट टेक्निक बताते हैं। आई विल टेक वन एक्सक्लूसिव वीडियो, फ्रेंड्स माइंड वेल, I will take exclusive one video on complement, so don't miss that video, subscribe to this channel, because मैंने देखा है कि कई लोग ने मुझे कमेंट बॉक्स में और कई जगह पे in a personal WhatsApp they have asked me what is complement, so I am going to take one exclusive video on this, what is complement। As complement, his habit is to find fault with me, now his habit is, जैसे मैंने बोला शॉर्टकट टेक्निक किया हुआ, एम इज आर, वो फॉर्म टू बी, उसके बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। His habit is what? To find fault with all. His habit is to find fault. Now here to find is playing the role of complement, not object. Thus complement हो सकता है as object of a preposition. Preposition का object बन सकता है, जैसे she had no alternative but to obey. She had no alternative but to obey. But के बाद to obey. So to obey is object and it is related to but. Object of what? Object of the preposition but. She had no alternative but to obey. तो यहाँ टू ओबे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के रूप धारण कर रही है, और किसका ऑब्जेक्ट है? बट क्या है? प्रीपोजिशन। सो इट कैन प्ले द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। आफ्टर एन एडजेक्टिव, एप्पल्स आर गुड टू ईट, एप्पल्स आर गुड, गुड इज एडजेक्टिव and to eat. So after an adjective, the position of infinitive, we are going through now the position of infinitive. infinitive कहाँ कहाँ लग सकता है, कहाँ उसका लोकेशन हो सकता है, ऐसे सेपरेट फ्रेज ना, पूरा आगे एक अपोजिशन क्लॉज जैसे हो सकता है, फ्रेज की तरह हो सकता है। टू टेल द ट्रूथ आई डिड इट, ही इज जंगली, सो टू स्पीक, ना सो टू स्पीक, नो इस टोटली कोमा के बाद लगेगा सो टू स्पीक, इज जंगली, सो टू स्पीक। टू टेल द ट्रूथ आई डिड इट, टू टेल द ट्रूथ ऐसे यूजिंग एज अ सेपरेट फ्रेज। अब टू टेल क्या होगा? इंफिनिटी हो गया, तो कभी कभी सेपरेट फ्रेज के रूप में उसको लिख सकते हैं। ऐसे कंपाउंड सेंटेंस विद अ पर्पस,
दो सेंटेंस होगा, जैसे कि द वर्कर्स हैड ए मीटिंग, दे वांटेड टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉइज। द वर्कर्स हैड ए मीटिंग, वर्कर्स ने मीटिंग रखा था, उन लोग एम्प्लॉइज के टर्म्स के बारे में चर्चा करना चाहते थे। देखो दो वाक्य है, इसको मैं कंपाउंड सेंटेंस जब बनाऊंगा तो इसमें इंफिनिटिव यूज करूंगा। जैसे क्या हो जाएगा, द वर्कर्स हैड ए मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉइज। इट विल बिकम द वर्कर्स हैड ए मीटिंग टू डिस्कस, बिकॉज the workers had a meeting, and second sentence that they wanted to discuss. So why was the meeting held? What was the purpose? So when this sort of purpose hota hai, I went there, I bought mangoes, I went there to buy mangoes, right? So उस प्रकार दो सेंटेंस कंबाइन करने के लिए अगर एक दूसरे के रिलेटेड है, पर्पस बता रहा है, क्यों गया था, क्यों किया था, मीटिंग क्यों किया था, क्योंकि डिस्कस करना था, तो मीटिंग डिस्कस करने के लिए किया था, उस प्रकार हम कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग इन्फिनेटिव। जैसे ये सेंटेंस में क्या होगा, द वर्कर्स हैड ए मीटिंग टू डिस्कस, राइट, दे वांटेड वापस निकाल दोगे एंड विल कंप्लीटली वन सेंटेंस, अ कंपाउंड सेंटेंस। द वर्कर्स हैड ए मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉइज। होप इट्स क्लियर। So it could be used as a compound sentence. Then we are coming to bare infinitive. अब infinitive जरूरी नहीं है टू के साथ ही हो। सबसे पहले तो ये समझना है कि infinitive यानी फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, राइट। तो आप वर्ब जब बोलते हैं गो, वेंट, गॉन, ये सब आप यूज करना है। Now let's see what is bare infinitive. Infinitives can also exist without to and are called as bare infinitive. I shall do it bare. Now this bare infinitive, I shall do it. I shall do it. You know there is no to with do. I'm going to do it. इसी सेंटेंस को अब बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू डू इट। तो सेकंड सेंटेंस में टू डू है, दैट इज इन्फिनिटिव विथ टू, और फर्स्ट सेंटेंस में आई शैल डू इट, यहाँ पे टू नहीं है, तो उसको bare infinitive कहा जाता है। Infinitives without to are usually used after some verbs. Hope you are